Hello students, today's topic is electric field. Electric field, we placed a test charge that is denoted by Q naught. एक टेस्ट चार्ज छोटा सा जिसको हम Q नॉट से डिनोट करते हैं, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। और इस जो Q नॉट जो हमारा टेस्ट चार्ज है, हम इसको हमेशा पॉजिटिव लेते, टेस्ट चार्ज विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। Suppose we have a charge plus Q and we place a charge Q naught which is test charge, which is positive. In first part of electrostatics we studied about the charges. If two same charges, then they are repel each other, then the force between the two charges is repulsive force, repulsive force, and the direction is outward from the charge, outward from the charge, plus Q. If that Q naught charge placed at this point, then repulsive force in outward direction, we place that charge Q naught at this point, then it is also outward means if we have a plus charge Q, then the electric field is radially outward, radially outward, radially outward. What is electric field? The space around charge, space around charge. अब ये चार्ज जो है वो कितना फोर्स जो लगा रहा है अपने सराउंडिंग्स में, वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे कहे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? स्पेस अराउंड चार्ज, स्पेस space around charge is called electric field. If we take negative charge and place a Q naught which is always positive, then the force is attractive force. अट्रैक्टिव फोर्स क्यों? क्योंकि ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट चार्जेस हैं। फोर्स क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। इस तरह से so if force is negative, charge is negative, then electric field is radially inward, radially inward. What is electric field? Space around charge. Is charge Q naught plus Q, then electric field is radially outward. If charge minus Q, then electric field is radially inward. एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन्स ताकत। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, it is defined as a ratio of force on charge Q, test charge, force on test charge
डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज, डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज. Electric field is a vector quantity because it has direction which is radially outward or radially inward. So electric field is vector quantity. So electric field intensity E equals to F by Q naught, and the direction is given by the direction of force, direction of force F by Q naught. क्या हुई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट? न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम. डायमेंशन क्या हुई? फोर्स, डायमेंशन mlt-2 डिवाइड बाई चार्ज, डायमेंशन 80 mlt-3a-1, mlt-3a-1. Space around charge, electric field is charge plus, then radially out, direction of electric field radially outward. If charge is minus, then the direction is radially inward. Electric field intensity, ratio of force on test charge divided by test charge, that is F by Q naught. Unit Newton per coulomb. Dimension mlt-3a-1. किसी भी पॉइंट पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो उसी पॉइंट के ऊपर हम उस टेस्ट चार्ज को रख देते हैं. एक छोटा सा चार्ज जिसका नाम टेस्ट चार्ज है, जिसको Q नोट से लिखते हैं, उसी पॉइंट के ऊपर हम क्या करते हैं, उस प्लस टेस्ट चार्ज को रख देते हैं. तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट आ जाती है. देखो कैलकुलेट करेंगे हम. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट. जैसे हमारे पास एक प्लस चार्ज Q और हम इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं. इस P पॉइंट पर जो R डिस्टेंस की दूरी पे है, जिसकी डिस्टेंस जो है हमारे पास R है. अब जैसे इस P पॉइंट पे निकालना है, P पॉइंट पे निकालना है तो यही प्लस जो Q नोट था अपना टेस्ट चार्ज, वो यही रख दें, Q नोट. कूलॉम्स लॉ में हमने फोर्स निकाला था, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल्स टू F बाई Q नोट. F कूलॉम्स लॉ से पता था ना, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. सो F इक्वल्स टू K is 9 into 10 to power 9 electrostatic constant, K Q naught by R square. It is vector, so R direction. फोर्स की वैल्यू कूलॉम्स लॉ में पढ़ी थी ना, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between them. F की वैल्यू E क्या आई? E equals to F डिवाइड बाई R square डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज क्या है? Q नोट. कितनी है हमारे पास वैल्यू? K Q नोट डिवाइड बाई R स्क्वायर. कैंसिल. KQ बाई R स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. फोर्स में हमारे पास दो चार्जेस थे, यहां क्या आया? KQ बाई R स्क्वायर. We find that
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। मींस जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू घटेगी। अब जैसे हमारे पास टेस्ट चार्ज Q, जैसे ये चार्ज है और टेस्ट चार्ज Q को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले सकते हैं, वहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हम इनफाइनाइट डिस्टेंस तक निकाल सकते हैं। बस हम क्या होगा हमारे पास, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू घटती चली जाएगी, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। फिर हमने वहां पढ़ा था कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी हम वेक्टर में देखें, डायरेक्शन ये होगी ना, ये वाली डायरेक्शन इस तरह से के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए में वेक्टर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, वी हैव टू चार्जेस 1 microcoulomb and -2 microcoulomb which are placed from 2 centimeter। ये कहे कि इलेक्ट्रिक कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंट्रल लाइन ज्वाइनिंग। मींस जो ये लाइन ज्वाइनिंग है इसके सेंटर के ऊपर हम जैसे निकालें, जैसे ये सेंटर है इसका, इस सेंटर पे निकाल रहे हैं O पॉइंट, इस सेंटर पे निकालें तो एक बार इससे पहले ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस मीन्स हमारे पास चार्जेस हैं जैसे Q1, Q2, Qn तक, पोजीशन वेक्टर R1, पोजीशन वेक्टर R2, Rn। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या Q1 की वजह से एक ये होगी E1, ऐसे ही Q2 की वजह से, ऐसे ही Qn की वजह से, तो हम इस O पॉइंट के ऊपर देख रहे हैं, तो क्या हमारे पास O पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सभी जो है वो रेडियली आउटवर्ड है। सो E इक्वल्स टू E1 प्लस डायरेक्शन सेम ना, E2 प्लस En, E1 के Q1 बाई R1 प्लस E2 के Q2 बाई R2, Q1 के Qn डिवाइड बाई Rn स्क्वायर, Rn डायरेक्शन। अब देखो इसके सेंटर के ऊपर ये कहे कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर कितनी हुई है डिस्टेंस, जैसे ये -2 माइक्रोकूलम है, यहां रखा हमने टेस्ट चार्ज, यही निकाल रहे हैं ना सेंटर के ऊपर, यहां रखा टेस्ट चार्ज Q0। इसकी वजह से क्या इस Q0 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी, रिपल्सिव फोर्स है ना E1, क्या उधर होगी, इस -2 माइक्रोकूलम की वजह से इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो क्या वो इस तरफ ही होगी। अभी देखो डायरेक्शन सेम है ना, E1 और E2 की डायरेक्शन सेम है, निकाल दो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर E इक्वल्स टू E1 प्लस E2।
E1 प्लस E2, डायरेक्शन सेम। इस 1 माइक्रोकूलम की वजह से कौन सा फोर्स लगा? रिपल्सिव फोर्स लगा, दैट इज E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस -2 की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लगा, दैट इज E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो E इक्वल्स टू E1 प्लस E2। E1 ये वाली इंटेंसिटी इसकी वजह से क्या हुई? K Q बाई R स्क्वेयर प्लस K Q बाई R स्क्वेयर। R तो दोनों की सेम है ना, सेंटर इस डिस्टेंस कितनी है? 1 सेंटीमीटर, इसकी डिस्टेंस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। K इंटू Q 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम मीन्स 1 इंटू 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -2 स्क्वेयर प्लस 10 टू पावर -2 मीटर प्लस K Q2 डिवाइड बाई R स्क्वेयर 10 टू पावर -2 का स्क्वेयर। अब इस 2 को माइनस मत कर देना, क्योंकि डायरेक्शन जो है सेम है, सेम डायरेक्शन है ना, तो ये Q2 इसको कितनी वैल्यू लिखेंगे? इसकी 2 लिखेंगे। क्या है दोनों में कॉमन? K, क्या बचा? 10 टू पावर -6 प्लस 2 इंटू 10 टू पावर -6 K 9 इंटू 10 टू पावर 9, सोल्व करेंगे 10 टू पावर -2 का स्क्वायर -2 प्लस 2 इंटू 10 टू पावर -6। क्या 10 टू पावर -6 कॉमन है? बाहर निकाला, क्या बचा अंदर? 3 बाई 10 टू पावर -2 का स्क्वायर 10 टू पावर 9 6 3 ऊपर गया तो 10 टू पावर 4 क्या प्लस हो गया? सोल्व कर लेंगे। इतना न्यूटन पर कूलम जो है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। सो हमने क्या देखा? चार्ज जैसे माइनस है ना, तो उसकी डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है हम वही लेंगे, इस -2 को नहीं लेंगे। सो देखा हमने E1 जो है उधर था, E2 की डायरेक्शन भी उधर ही आ रही थी, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा हमारे पास वो होगा E1 प्लस E2। ये वैल्यू न्यूटन पर कूलम, ये आई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।